الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کفریات کلمات کے بارے میں ہم سیکھ رہے اتنے روز سے، بد فعلی کو جائز سمجھنا کیسا، گندی حرکت کو جائز سمجھنا کیسا۔ جو بد فعلی کو جائز سمجھے یا جائز کہے، کیا وہ مسلمان ہی رہے گا؟ جو بد فعلی کر رہے ہیں وہ کافر تو نہیں ہوگا؟ کرنے والا حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر وہ جائز بول دیا کہ میں جو کر رہا ہوں جائز ہے، جب تک ناجائز سمجھا تو مسلمان تھا، اب وہ ناجائز بول دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں جس نے حرام اجماعی کی حرمت کا انکار کیا، یعنی علماء اجماع جو ہے جب یہ چیز کو قرار دے چکے، ڈکلیئر کر چکے کہ حرام ہے، تو اس کے حرام ہونے میں شک کیا تو کافر ہے۔ یہ شراب، زنا، لیواطت، سود وغیرہ یہ سارے حرام کام۔ میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت و شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان لیواطت کے حلال ہونے کے قائل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لیواطت کا قائل کافر ہے۔ یعنی جو بولتے ہیں لیواطت جائز ہے، گندی حرکت جائز ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال، اس شخص کے لیے کیا حکم ہے جو جائز تو نہ کہے مگر یہ تمنا کرے کہ کاش بد فعلی جائز ہوتی؟ وہ ناجائز جانتا ہے کہ ناجائز ہے، بولتا بھی ناجائز ہے، لیکن کیا بول رہا ہے؟ کاش جائز ہوتی۔ تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تمنا کرنا کہ کاش جائز ہوتی، یہ بھی کفر ہے۔ البحر الرائق جلد 5 صفحہ 208 پر ہے، جو حرام کام کبھی حلال نہ ہوئے ان کے بارے میں حلال ہونے کی تمنا کرنا کفر ہے۔ مثلا تمنا کرنا کاش ظلم کرنا جائز ہوتا، کاش زنا کرنا، قتل ناحق کرنا سب حلال ہوتے، یا شراب پینا کاش جائز ہوتا، تو ایسے تمنا کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ صرف ایک بندہ جو ہے ادب سے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پیر چوم سکتا ہے، پیشانی چوم سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے انگ کو چوم سکتا ہے، ماں اپنی اولاد کو چوم سکتی ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو چوم سکتا ہے، ہاں لیکن جو خوبصورت لڑکا رہتا ہے اس کو چومنے سے اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو نہ چوما جائے، یا شہوت کا اندیشہ ہے تو بھی نہ چوما جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو غیر محرمہ عورت جو بیوی نہیں ہے اس کو بوسہ لینے کو جائز سمجھے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حرام ہے نا کسی اور کو چومنا۔ ایسا بے حیا شخص کافر ہے جو جائز قرار دے رہا ہے علیہ السلام، جو نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جو اجنبی عورت کا بوسہ لینا جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ اچھا بوسہ لینا کیا ہے؟ اجنبی عورت کو بوسہ والا کہیں بھی کس کر رہا ہے تو بوسہ والا کس، تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل غیر عورت کو اگر اس نے ناجائز کو جائز بول دیا تو کفر ہے۔
गुनाह के जरिए दीन की खिदमत, क्या गुनाह के जरिए दीन की खिदमत हो सकती है? नहीं। बाज लोग दीन का काम करने के लिए नाजायज जरा इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एतराज करे तो कहते हैं कि आजकल दीन का काम इसी तरह होता है। अल्लाह इनका ये जवाब कहाँ तक दुरुस्त है? सदर शरिया बदरुल तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी फरमाते, एक शख्स गुनाह करता है, लोगों ने उसे मना किया तो कहने लगा इस्लाम का काम इसी तरह करना चाहिए। यानी जो गुनाह और मौसियत यानी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी को इस्लाम कहता है वो काफिर है। मौसियत यानी गुनाह, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी, जी। मौसियत के जरिए दीन की खिदमत बाइस हलाकत है। हलाक होने में मर जाना, बर्बाद हो जाना। यहाँ उन लोगों के लिए काफ़ी दर्द से इबरत है जो दीन के काम के नाम पर धमकियाँ देकर ज़बरदस्ती चंदा निकलवाते हैं, हड़तालें करते हैं, हड़ताल यानी स्ट्राइक, जबरन यानी ज़बरदस्ती मुसलमानों की दुकानें बंद करवाते हैं, गाड़ियाँ और इमलाक जलाते हैं, सबकी जायदादें जलाते हैं, मुसलमानों में खौफ व हिरास फैलाते हैं, बसों पर पत्थर बरसाते, इस तरह की हरकत से आप मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म ढाते और फिर माज़अल्लाह अज़ल कहते सुनाई देते हैं, क्या करें हालात ही ऐसे हैं, अगर हम यूँ ना करें तो दीन का काम नहीं हो सकता। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज है, वो हमारा मोहताज नहीं है जो उसी की नाफरमानी करके हम दीन की खिदमत करने के लिए निकल पड़े। उसे इस बात की कतई हाजत नहीं कि कोई दीन का काम करे या ना करे, हम खुद उसके मोहताज हैं। लिहाजा हमें रब कायनात और शाह मौजूदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में ही इबादत और दीन की खिदमत बदा लानी चाहिए। बिलफर्ज कोई मौसियत के जरिए दीनी खिदमत में ज़ाहिरी ज़्यादत यानी बज़ाहिर तरक्की महसूस करे भी तो उसे खुशफहमी के बजाय खुशफहमी पड़ जाने के बजाय इस हदीस मुबारक को बार बार पढ़ना और फिक्र आखिरत में कुड़ना चाहिए। चुनांचा सरकार मदीने के ताज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक अल्लाह इस दीन की मदद ऐसी कौम के जरिए भी लेता है जिनका दीन में कोई हिस्सा नहीं होता। दीन इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह ताला से भी ऐसे लोग से भी दीन की खिदमत ले लेता है। इसलिए अपने दिल में इखलास पैदा करना चाहिए, अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो या अल्लाह, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। शरीयत में जिना करना तो हराम है, शरीयत से जिना की इजाजत मांगना कुफ्र है। एक औरत के बारे में सवाल है कि क्या सख्त तंगदस्ती के आलम में वो औरत बहुत गरीब है तो ऐसी हालत में शरीयत उसको औरत को जिना के जरिए गुज़र औकात करने की इजाज़त देती है? मतलब पूछा जा रही है कि वो औरत बहुत गरीब है, मान लो उसका शौहर नहीं है और वो बच्चे यतीम है, छोटे बच्चे, सबको पालना भारी पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या अपनी जिस्म बेच कर जिस्म फरोशी करके घर और मर्दों के साथ एक बिस्तर पे सो के क्या वो पैसा कमा सकती है? समझ आई मेरी बात? शरीयत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का नाम है। शरीयत किसका नाम है? अल्लाह उसके रसूल के अहकामात का नाम है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिना की इजाज़त मांगनी कुफ्र है। खुदा की नाराजगी को हल्का जानना कैसा है ना? कोई बोलता है जाने दे, हराम तो है, क्या होगा यार, बोला था कोई देर में। तो ये जुमला कहना असरुय शरा कैसा है कि अल्लाह नाराज होता है तो हो जाए, जवाब ऐसा कहना कुफ्र है। इसमें अल्लाह की नाराजगी को हल्का जानना पाया जा रहा है। अल्लाह अज़ल के नाराज होने की सूरत में बंदा अजाब में गिरफ्तार होता है और इस जुमले से कायल का अपने बाप को अल्लाह के अजाब से बेखौफ जाहिर करने का पहलू भी निकल रहा है और ये भी कुफ्र है। सदर शरिया बदरुल तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी
आला रहमतुल्लाह कवि फरमाते हैं किसी से कहा कि गुनाह ना कर वरना खुदा तुझे जहन्नम में डालेगा। उसने कहा मैं जहन्नम से नहीं डरता, अल्लाहु अकबर, या कहा खुदा के अजाब की कुछ परवाह नहीं, अल्लाहु अकबर, या एक ने दूसरे से कहा तो खुदा से नहीं डरता, उसने गुस्से में कहा कि नहीं डरता, अल्लाहु अकबर, या ये कहता है कि खुदा क्या कर सकता है, अल्लाहु इसके सिवा क्या कर सकते हैं कि दोजख में डाल दे, अल्लाहु या कहा खुदा से डर तो उसने कहा खुदा कहाँ है। अकबर, ये सब कलमात कुफ्र है कहने वाला काफिर हो गया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दूसरे के हुक्म को तरजीह देना। कैसा तरजीह मतलब अव्वलियत देना, प्रायोरिटी देना, बढ़ावा देना, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को छोड़ के दूसरे के अहकाम को बढ़ावा देना, उसको तरजीह देना, उसको अपनाना। एक ऐसा है जो शख्स गुनाह पर जिद करे, जो गुनाह पर जिद करे और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दूसरे आदमी के हुक्म को तरजीह दे, वो कैसा है। तो तरजीह के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। तरजीह का एक मतलब तो ये है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बजाय किसी दूसरे के हुक्म पर अमल करे तो ये कुफ्र नहीं। जबकि तरजीह का दूसरा मायने है कि किसी के हुक्म को अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से बड़ा समझा। लेकिन कोई गुनहगार से गुनहगार मुसलमान ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो किसी और के हुक्म को अल्लाह उसके रसूल के हुक्म से बड़ा समझे। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान इसी तरह के फतवे का जवाब देते हुए फरमाते हैं और हुक्म सुनकर गुनाह पर जिद करना इस्तिक़ाक़ ना अज़ाब नार है, यानी जहन्नम के अज़ाब का मुस्तहिक हो गया वो जो गुनाह पर जिद करके बैठा हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में दूसरा पारा सूरह बकरा आयत नंबर 206 फरमाता है तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, और जब उससे कहा जाए अल्लाह से डर तो उसे और जिद चढ़े, गुनाह की और जिद चढ़ती है। ऐसे को दोज़ख काफ़ी है और वो ज़रूर बहुत बुरा बिछौना है। और दोज़ख की आग में चलेंगे, दोज़ख में सांप बिच्छू आग वगैरह से कोई बचाने वाला भी हमको नहीं रहेगा। तो जो गुनाह करता है उसको दोज़ख में डाला जाएगा। आयत नंबर 206 सूरह बकरा दूसरा पारा। इब्लीस जो शैतानों का सरदार है, इब्लीस की पैरवी से हुक्म खुदा और रसूल पर चलना और जालिम के हुक्म पर चलना गुनाह कबीरा है और इस्तिहकाक के जहन्नम है, जो जहन्नम का मुस्तहिक हो गया। मगर कोई मुसलमान कैसा ही फासिक को फाजिर हो, ये ख्याल नहीं करता कि अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर इस जालिम के हुक्म को तरजीह दी, या ऐसा समझो तो आप खुद ही काफिर है, यानी खुद काफिर हो गया। और इआज़ु बिल्लाहि ताला वल्लाहु ताला आलम। डांस करना हराम है, नाचना हराम है। जो भी डांस करेगा वो दोज़ख में जाने वाला अमल कर रहा है, दोज़ख की आग में जलेगा वो। अब जो कोई बोलेगा डांस करना जायज़ है, मुरवजा डांस को जायज़ करना कैसा? मुरवजा मतलब जो राइज है, जो भी चल रहे। फुक़हा किराम रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते जो रक्स करने को जायज़ समझे, रक्स मतलब रक्स मतलब डांस। बेटा संभाल को तो ना, इधर से जाए, इधर से इधर से इधर से इधर से संभाल के संभाल के। क्या बोला था मैं? डांस करना हराम है। फुक़हा किराम फरमाते जो रक्स करने को, रक्स यानी डांस करने को जायज समझे उसे उस पर हुक्म कुफ्र है। यहाँ रक्स से मुराद लचके तोड़े के साथ किया जाने वाला वो डांस है जो कि शरअन नाजायज है। इसकी हकीकी के बायस बेखुदी में झूमना, जो अल्लाह उसके रसूल के इश्क में झूमता है, अपने पीर और मुर्शिद की मोहब्बत में झूमता है, और जो झूम रहा है ना तो उसमें खोया हो रहता है वो, तो उसको खुद ही समझ में आता है कि मैं कैसे झूम रहा हूँ। वो वज़ तारी होना या तो अजुद यानी आशिकान ने खुदा और रसूल के वज़द सादिक की मुखलिसाना नक्काली माज़अल्लाह कुफ्र नहीं है। उनका झूमना भी ऐसा लगता है डांस हो रहा है, बज़ाहिर वो डांस नहीं है।
خود بخود ویسا ہو رہا ہے. ہاں بلکہ عین سعادت کی بات ہے یہ تو. اللہ کے رسول کی محبت میں گم ہو جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.